Assalamualaikum, dear all students of class 7th. This is your teacher, Miss Tania, and I hope that you all will be fine and safe at your homes. Let me tell you first that I will teach you English A in class 7. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school. But unfortunately, the unfavorable condition did not allow us to materialize the program, and resultantly, we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without any break. So, welcome back to the online learning. This is your English A book, and I hope that you all have seen your Oxford Reading Circle edition 2. In class 7, we are studying second edition of Oxford Reading Circle. So, open your books and first of all take out contents. In the month of August, we have 2 units in which the number 1 is A Drive in the Motor Car and the second one is My Big Brother. We are going to study first My Big Brother on page number 65. Now come on page number 65. So open page number 65. On page number 65 we have unit number 7, which is My Big Brother. First of all, I will read this unit and then will explain you all. Now, I am going to start to read and explain you all. My big brother was 5 years older than me, but only 3 grades ahead. He had begun his studies at the same age I had. यहाँ पर जो है बेसिकली 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, और ये स्टोरी जो बेस कर रही है वो 2 भाइयों पर बेस कर रही है। इसमें जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो 2 भाई हैं। यहाँ पर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की कहानी बता रहा है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो मुझसे 5 साल बड़ा है, बट ओनली 3 ग्रेड्स अहेड, लेकिन वो एजुकेशन में सिर्फ 3 ग्रेड्स जो है वो आगे है। He had begun his studies at the same age I had. और उसने अपनी स्टडीज मतलब उसने अपनी तालीम उसी एज में सेम एज में स्टार्ट की थी जब उसने खुद ने की थी. But he didn't like the idea of moving hastily in an important matter like education. क्योंकि उसे ये आइडिया पसंद नहीं था कि वो जो है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला जाए, स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट मैटर में जैसे कि एजुकेशन में. He wanted to lay a firm foundation for that great adhesive. क्योंकि वो क्या चाहता था, he wanted to lay a firm foundation. वो ये चाहता था कि उसकी जो बुनियाद है वो काफ़ी फर्म हो, मतलब कि मजबूत हो. So he took 2 years to do 1 year's work. इस वजह से वो कोई भी काम करने में 2 साल लगा देता था, जो कि 1 साल में वो काम हो सकता है. Sometime he even took 3, और कभी कभी वो 3 साल भी उस काम में मतलब उस पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए लगा देता था. If the foundations were not well made, how could the edifice endure? I was 9, he was 14. अब यहाँ पर वो अपना रेफरेंस दे रहा है अपना और अपने भाई का कि मैं 9 साल का था और उसका भाई कितने साल का था, he was 14. He had full right by seniority to supervise and instruct me. और उसके पास जो है वो फुल राइट था कि वो सीनियर होने के लिहाज से, बड़ा होने के लिहाज से उसको सुपरवाइज करे, उसकी देखभाल करे और उसको इंस्ट्रक्ट भी कर सकता है, मतलब कि उसको हिदायत भी दे सकता है. एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट एवरी ऑर्डर ऑफ हिज एज लॉ. और मैं जो हूँ वो उसकी हर बात मानने के लिए एक्सपेक्टेड था
जैसे कि एक लॉ को कोई भी इंसान मानता है, मतलब मैं उसकी इस तरीके से फर्माबरदारी करता था। बाय नेचर ही वॉज स्टडियस, और वो अपनी नेचर के लिहाज से कैसा था उसका बड़ा भाई? स्टडियस, मतलब कि पढ़ाकू, मतलब पढ़ने में बहुत आगे था, एजुकेशन में। ही वॉज ऑलवेज सिटिंग विद अ बुक ओपन, और वो हमेशा किताब खोले बैठा रहता था। एंड परहैप्स टू रेस्ट, और रेस्ट करने के बजाय हिज ब्रेन he would sometimes draw pictures of birds and cats in the margin, और पढ़ने पढ़ने के बाद आराम करने के बजाय उसका दिमाग जो है वो क्या करता, इतना वर्क करता था, उसका दिमाग चलता रहता था कि वो कभी कभी पिक्चर्स ड्रॉ करता रहता था बर्ड्स और कैट्स की अपनी मार्जिन में। लाइक है, आप यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं, ऑफ हिज नोटबुक, अपनी नोटबुक की। नाउ कम ऑन पेज नंबर 66। ओकेजनली he would write a name, और ओकेजनली वो अपना नाम भी लिख रहा होता था। मतलब कि यहाँ पर उसकी ये वो मसरूफियात बताई जा रही हैं कि वो पढ़ने के अलावा, मतलब जब वो पढ़ लेता था उसके अलावा, जब उसको आराम करने के बजाय वो क्या क्या करता था। ओकेजनली ही वुड राइट अ नेम, नाम लिखता रहता था, अ वर्ड और सेंटेंस 10 और 20 टाइम्स। वो एक वर्ड को या अपने नाम को या किसी भी सेंटेंस को 10 से 20 दफा लिख रहा होता था। He might copy out a couplet several times in beautiful letters, और कभी कभी वो कॉपी कर रहा होता था। कपलेट यहाँ पे कहते हैं किसी मिसरे को, शेर को। यहाँ पर वो क्या करता था, मतलब फारिग वक्त में बैठा हुआ वो उस शेर को, अशआर को सेवरल, मतलब काफी टाइम लिख रहा होता था ब्यूटीफुल लेटर्स, खूबसूरत लेटर्स में। और क्रिएट न्यू वर्ड्स, या तो वो न्यू वर्ड्स क्रिएट कर रहा होता था, विच मेड नो राइम और रीजन, जिसका कोई रीजन, कोई वजह नहीं बनती थी ऐसे वर्ड की, और कोई राइम, कोई उसकी नज़म नहीं बन रही होती थी, लेकिन वो लिखने में मसरूफ रहता था। ही वॉज इन द 9th ग्रेड, और वो उस वक्त कौन से ग्रेड में था? 9th ग्रेड में। आई वॉज इन द 6th, और वो जो छोटा भाई था वो कौन सी ग्रेड में था? वो 6th ग्रेड में था। टू अंडरस्टैंड हिज क्रिएशन वॉज बियॉन्ड माई पावर, तो वो ये बता रहा है कि उसकी जो ये तमाम वो काम करता रहता था, चीज़ें बनाता रहता था, लिखता रहता था, वो सब मेरे समझ से बाहर थी। I was not really very keen about studying, और वो ये अपने बारे में ये बता रहा है कि मैं जो हूँ वो पढ़ने लिखने का शौकीन इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया गया है कीन, इसका मतलब है पुरजोश, मतलब कि जो आरजूमंद होना, मतलब पढ़ने लिखने का शौक होना। तो वो अपने बारे में यहाँ बता रहा है, आई वॉज नॉट रियली वेरी कीन अबाउट स्टडिंग, टू पिक अप अ बुक एंड sit with it for an hour was a tremendous effort। और वो ये बता रहा है अपने भाई का रेफरेंस देते हुए, जैसे उसका भाई घंटों घंटों किताबें लेके बैठा हुआ होता था, तो वो उसको ये चीज़ काफ़ी एफर्ट, मतलब उसमें मेहनत लगती थी कि वो घंटों घंटों किताबें लिए नहीं बैठता था। As soon as I found a chance, I would leave the hostel and play marbles। और जैसे ही उसको कोई चांस मिलता था, क्योंकि ये दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे, तो वो जैसे ही उसको कोई चांस मिलता था वो हॉस्टल से बाहर निकल के मार्बल्स खेलने चला जाता था, या फ्लाई पेपर काइट्स, या वो पेपर की बनी हुई काइट्स उड़ाने लग जाता था। और सम टाइम जस्ट मीट अ चम, और कभी कभार वो अपने किससे मिलने चला जाता था। यहाँ पर चम वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है दोस्त या साथी। वो पढ़ने के बजाय वो क्या करता था, वो जब भी उसको मौका मिलता था, जब उसका भाई पढ़ने के लिए बैठ जाता था, वो हॉस्टल छोड़ के बाहर खेलने चला जाता था, प्ले मार्बल्स, या वो पेपर काइट्स जो है उड़ाने लग जाता था, या समटाइम्स क्या करता था, वो अपने दोस्तों या साथियों से मिलने चला जाता था। Sometimes we had climbed onto the courtyard walls and jumped down। और कभी कभी वो लोग सहन की, जो है कोर्टयार्ड यहाँ वर्ड जो यूज हुआ है इसकी मीनिंग है सहन। कभी कभी वो सहन की दीवारें क्लाइम करते थे, मतलब कि छलांग लगाना वहां से, या जंप करना, जंप डाउन कर वहां से कूद कर बाहर चले जाते थे। बट एज सून एज आई केम बैक इन टू द रूम, और जैसे ही वो जल्दी वापस अपने कमरे में आया एंड सॉ माई ब्रदर्स स्काउलिंग फेस, आई वॉज पेट्रिफाइड। यहाँ पर जब उसने कोर्टयार्ड वॉल जो है वो जंप की थी,
क्लाइम की थी, वहां से जंप किया था, तो उसका उसका जब इल्म उसके भाई को हुआ और वो जब वापसी अपने हॉस्टल रूम में आया तो उसने अपने भाई का गुस्से वाला चेहरा देखा, जिसको देख के वो क्या हो गया, वो पत्थर का बन गया। आई वॉज पेट्रिफाइड। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी वेयर वर यू। उसने सबसे पहला सवाल क्या किया कि तुम कहाँ थे। माई साइलेंस वॉज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट एंड माई ब्रदर्स ओनली रेमेडी फॉर दिस वॉज टू ग्रीट मी विद द इंडिग्नेंट वर्ड्स। और उसका बड़ा भाई जो है, उसकी खामोशी देख के ही उसकी शरारत को पहचान गया। इफ यू स्टडी इंग्लिश दिस वे यू विल बी स्टडीइंग योर होल लाइफ. Studying English is no laughing matter that anyone who wants to can learn. You have got to wear out your eyes morning and night and use every ounce of energy. And I ask you, how much of the blockhead are you that you can't learn a lesson from looking at me? You have seen how much I grind, no matter how many shows and carnivals there may be. Have you ever seen me going to watch them? Every day there are cricket and hockey matches, but I don't go near them. I keep on studying all the time, and even so it takes me 2 years or even 3 for one grade. और यहाँ पर उसका भाई उससे सवालात कर रहा होता है और उसको ये बता रहा होता है कि तुम मुझे क्यों नहीं देखते, मुझसे कुछ लेसन हासिल क्यों नहीं करते। तुम्हें पता है कि मैं कितने घंटों जो हूँ वो पढ़ाई में लगा रहता हूँ, और मुझे एक ग्रेड को जो है वो पास करने में 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब एक क्लास को जो है क्लियर करने में 2 या 2 से ज़्यादा साल लग जाते हैं। इतना पढ़ने के बावजूद भी लेकिन तुम फिर भी मुझसे कुछ सबक हासिल नहीं करते कि मैं कितने कार्निवाल्स, कितने क्रिकेट और हॉकी मैचेस छोड़ के उनके करीब, मतलब उस मैचेस में भी नहीं जाता और पढ़ता रहता हूँ, उसके बावजूद मुझे इतना टाइम एक ग्रेड को क्लियर करने में लग जाता है। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू पास व्हेन यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग। तो तुम कैसे ये एक्सपेक्ट, उम्मीद लगा सकते हो कि तुम इसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे और अपनी मतलब कि क्लास क्लियर कर लोगे, अपना ग्रेड क्लियर कर लोगे। इफ यू वेस्ट योर टाइम इट वुड बी बेटर इफ यू जस्ट वेंट होम एंड प्लेड क्रिकेट टू योर हार्ट्स कंटेंट। और उसको ये कहता है कि इससे बेहतर ये है कि तुम ये हॉस्टल छोड़ के घर वापस लौट जाओ और वहां पर अपनी दिली खुशी से वहां पर क्रिकेट खेलते रहो। वाई वेस्ट आर डैड्स हार्ड अर्न मनी। मतलब वो ये कहता है कि तुम हमारे फादर, मतलब हमारे डैड की जो मेहनत की कमाई है उसको इस तरीके से वेस्ट क्यों कर रहे हो। Hearing a dressing down like this, I had started to cry. What could I answer? My brother was an expert in the art of giving advice. और ये सब तमाम अल्फाज सुन के उसने रोना शुरू कर दिया और उसके पास कोई उन बातों का जवाब नहीं था। और वो बता रहा है कि मेरा जो बड़ा भाई है, माय ब्रदर वाज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ गिविंग एडवाइस, और मेरा बड़ा भाई जो है वो एडवाइस देने में माहिर था। ही हैड से सच sarcastic words that my spirit would collapse. क्योंकि उसके भाई ने ऐसे तंजिया अल्फाज इस्तेमाल करे थे कि जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट जो है वो कोलैप्स हो गई थी। In despair for a little while I had think, why don't I run away from school and go back home? थोड़े ही इस अफसोस और मायूसी के आलम से निकलने के बाद उसने ये सोचा कि why don't I run away from school, मैं यहाँ मतलब स्कूल से दूर क्यों नहीं चला जाता और अपने घर वापस क्यों नहीं चला जाता। बट आफ्टर एन आवर और टू, लेकिन कुछ 1-2 घंटे गुजरने के बाद द क्लाउड ऑफ despair would dissipate and I had resolved to study with all my might. और थोड़े ही अफसोस करने के बाद उसने ये सोचा कि मुझे जो है वो अपनी स्टडी के मामले को सॉल्व करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए और अपनी स्टडीज जो है वो भरपूर तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। I would draw up a schedule on the spot. In my timetable, the heading of play was entirely absent. और इसके बाद उसने सोचा कि मैं अपना स्केड्यूल खुद ही उसी वक्त बनाऊंगा। In my timetable,
द हेडिंग ऑफ प्ले वॉज एंटायरली एब्सेंट, और उसके टाइम टेबल में जो प्लेइंग टाइम था वो सिरे से ही गायब था, मतलब कि नहीं था। गेट अप एट द क्रैक ऑफ डॉन, और उसने अपनी इस तरीके से अपनी रूटीन बनाई कि वो सुबह सूरज निकलते ही जो है वो जाग जाएगा। वॉश हैंड्स एंड फेस एट 6, और 6 बजे जो है वो अपना हाथ मुंह धो के फ्रेश होगा। ईट अ स्नैक, सिट डाउन एंड स्टडी, और वो फिर स्नैक्स खाने के बाद जो है वो बैठ के पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। फ्रॉम 6 to 8 इंग्लिश, 6 से 8 बजे तक वो क्या पढ़ेगा, इंग्लिश। 8 to 9 अर्थमेटिक, 8 से 9 बजे तक अर्थमेटिक। 9 to 9:30 हिस्ट्री, 9 to 9 से 9:30 हिस्ट्री। देन मील टाइम, एंड और उसके बाद क्या था, उसका मील टाइम मतलब खाने का वक्त। एंड आफ्टरवर्ड्स ऑफ टू स्कूल, और उसके बाद वो स्कूल चला जाएगा। हाफ आवर रेस्ट एट 3:30, और वो 3:30 बजे तक क्या करेगा, आधे घंटे का रेस्ट करेगा। व्हेन आई गॉट बैक फ्रॉम स्कूल, और स्कूल से वापस आने के बाद ज्योग्राफी फ्रॉम 4 to 5, और वो 4 से 5 बजे तक किसको टाइम देगा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को। ग्रामर फ्रॉम 5 to 6, और ग्रामर को वो कब टाइम देगा, फ्रॉम 5 to 6 मतलब 5 से 6 बजे तक। देन अ हाफ आवर्स वॉक इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल, और आधे घंटे की वो क्या करेगा, वॉक करेगा, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल के सामने। 6:30 to 7 इंग्लिश कॉम्पोजिशन, 6:30 से मतलब 6:30 से 7 बजे तक वो इंग्लिश कॉम्पोजिशन पे गौर करेगा। देन सपर, और उसके बाद सपर मतलब कि जो शाम का हल्का फुल्का नाश्ता होता है उसको हम सपर कहते हैं। ट्रांसलेशन, उसके बाद वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम 8 to 9, और 8 से 9 बजे तक वो ट्रांसलेशन पे गौर करेगा, मतलब ट्रांसलेशन पढ़ेगा। साइंस फ्रॉम 9 to 10, और 9 से 10 बजे तक वो साइंस पे फोकस करेगा। फ्रॉम 10 to 11 मिसलेनियस, देन टू बेड, और उसके बाद 10 से 11 बजे वो अदर सब्जेक्ट्स, मतलब मिसलेनियस कहते हैं जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं, वो काम मतलब बाकी जो काम रह जाते हैं वो उस पर फोकस करेगा। देन टू बेड मतलब उसके बाद वो सोने के लिए बेड पर चला जाएगा। या यू कैन सी कि यहाँ पर जो उसका छोटा भाई है उसने अपना स्केड्यूल किस तरीके से, अपना टाइम टेबल पढ़ाई का किस तरीके से यहाँ पर सेट किया था। बट इट्स one thing to draw up a schedule, another to follow it. लेकिन सिर्फ यहाँ पर स्केड्यूल को बनाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको फॉलो करना भी होता है। It began to be neglected from the very first day. लेकिन उसने बना तो लिया था, लेकिन उसने उसको निगलेक्ट मतलब के इग्नोर करना शुरू कर दिया था, मतलब उस पर अमल नहीं किया था शुरू पहले दिन ही से। The inviting green expanse of the playground, the balmy vines, the exciting all draw me mysteriously and irresistibly, मतलब यहाँ पर ये अपने हॉस्टल रूम के विंडो से बाहर का नज़ारा देख रहा है। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उसने अपना स्केड्यूल तो ड्रॉ कर लिया था, अपना टाइम टेबल बना लिया था, लेकिन ये जो बाहर का नज़ारा है जहाँ पर ग्रीन ग्रास है और यहाँ पर वाइन मतलब जो हवाएं चल रही हैं उसके बारे में इसका जिक्र हुआ है कि, और जिस तरीके से बाहर यहाँ पर बाकी बच्चे खेल रहे हैं, तो इन सब ये पूरा मंजर देखकर वो अपना स्केड्यूल फॉलो करना भूल गया था, और मतलब उसने ऐसा शो किया कि उसने कोई स्केड्यूल रेडी किया ही नहीं है। As soon as I was there, I forgot everything. और ये बाहर का मंजर देख के वो सब कुछ भूल गया, मतलब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वो ये भूल गया कि उसने अपना कोई स्केड्यूल भी बनाया है। The books that strained your eyes, and then my big brother would have an occasion for sermons and scoldings. और उसके भाई ने ये मंजर देखते हुए उसको फिर से डांटना शुरू कर दिया। Then yearly exams came round, और इस तरीके से जो yearly exams जैसे कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स होते हैं, इस तरीके से इन दोनों भाइयों के जो है वो yearly exams आ गए। My brother failed, और उसमें क्या हुआ, उसका जो भाई था वो फेल हो गया। I passed and was first in my class, और वो ये बता रहा है कि मैं जो हूँ वो पास हो गया था और वो फर्स्ट आया था अपनी क्लास में। Only 2 years difference was left between him and me.
और इस तरीके से उन दोनों भाइयों में 2 साल का डिफरेंस बाकी रह गया था। हमने यहाँ पर स्टार्ट में पढ़ा था कि इन दोनों भाइयों के दरमियान जो था वो 3 साल का डिफरेंस था, लेकिन 1 साल जो इनके ईयरली एग्जाम्स हुए उसमें उसका बड़ा भाई जो है वो फेल हो गया, और इस तरीके से उन दोनों में सिर्फ 2 साल का जो है वो डिफरेंस आ गया। मतलब कि वो इससे सिर्फ 2 साल आगे हो गया। It occurred me to taunt him. Look at me. I went on playing and having a good time. और इस तरीके से उसको उस अपने बड़े भाई पे टॉन्ट करने का मतलब तंज करने का जो है वो मौका मिल गया, और उसने कहा look at me, I went on playing and having a good time and I am at the head of my class, but he was so sad and depressed. उसने कहा कि देखो, मैं जो हूँ वो खेलने भी जाता था और मेरे पास इस तरीके से मेरा जो है वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा, और अब मैं जो हूँ वो पास होकर मतलब कि क्लियर होके अपनी क्लास का हेड भी हूँ। बट ही वॉज सो सैड एंड डिप्रेस्ड दैट आई फेल्ट जेन्युइनली सॉरी फॉर हिम। और लेकिन उसका भाई जो है वो ये सब बातें सुन के काफ़ी उदास हो गया, और वो जो है वो काफ़ी डिप्रेस था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी बुरा लगा। But now I could be a little proud of myself, and indeed my ego expanded. लेकिन वो अपने भाई को इस तरीके से मायूस देख के जो है वो गिल्ट भी फील करता है, लेकिन इस एक तरीके से वो अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा होता है, और उसकी ईगो जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। My brother's sway over me was over. I began to take part freely in the games. My spirits were running high. He guessed it, and on one day when I had spent the whole morning playing cricket. और इस तरीके से जो है उसके भाई का जो उसके ऊपर कंट्रोल था वो जो है वो ख़त्म हो गया, और इस तरीके से उसने बआसानी वो रोज़ाना जो है वो फ्रीली अपने गेम्स में पार्ट ले सकता था, और इस तरीके से उसका सारा डर और खौफ अपने भाई का ख़त्म हो गया था। Now students, we will stop our today's reading and explanation here. Now we will continue our remaining topic in the other session. Now the first thing you all have to do in your copies, first of all you all will make a title page of month of August, then you all will make a title page of unit number 7, my big brother, then you all will do words to know, and you all will do words to know from page number 65 to 68. Page number 65 to 68. Like on page number 65 we have a new word edifice, and then on page number 66 we have 3 new words, and on page number 67 we have another 3 new words, and then on page number 68 we have 2 new words. From here you all will complete your new words from here. Now the time of the today's session has been ended here, and if you have any query or any question related to today's session, then you can ask me in your query time. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.